Hello and good morning to all my dear students. Welcome to our YouTube channel Saad the Pharmacist Academy. I am Muhammad Saad, lecturer of UBKWT Pharmacy College. From now onward, we are going to start a series of PowerPoint presentation videos on this YouTube channel. I am very happy to announce you from now onward on this channel we will upload videos related to different subjects like anatomy and physiology, pharmaceutical chemistry, pharmacognosy, pharmacology, pharmaceutics, and various other subjects. To know basics of above subjects, you will click on the link given in the description of this video. So we are going to start with our first subject, that is human anatomy and physiology. In this subject we are going to take our first basic chapter, that is introduction to human body. In this chapter we will select subtopic as definition and scope of anatomy and physiology. As you all know, in the first year of D Pharmacy and B Pharmacy, there are various basic subjects which is going to teach in the first year. Likewise, in the HAP, HAP is also there in the first year D Pharmacy and B Pharmacy. In the first chapter, introduction to human body, we are going to study the different body system in the upcoming presentation videos like circulatory system, nervous system, respiratory system, digestive system, musculoskeletal system. In this chapter or in this subtopic, we are going to study the definition and scope of anatomy and physiology. Before going to start the actual chapter, we have to know, हमें पता रहना चाहिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. So the objective for this topic is, after watching this video you will able to define anatomy and physiology. After watching this video you will anticipate the scope of anatomy and physiology, and you will also prioritize the subdisciplines of anatomy and physiology. Okay, next we will start with the definition of anatomy. Anatomy basically is derived from the Greek word anatom, जिसका मतलब होता है dissection, or in some other dictionary, if we split the word, if we break down the word ana and tommy, ana means up and tommy means cutting. So the definition will be, is the branch of biology concerned with the study of structure of organism or body and its relationship, physical relationship between body system. अगर हम देखें बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक लंग्स, ब्रेन, द हार्ट, द डाइजेस्टिव सिस्टम और intestine, the stomach and various other. Okay, तो अगर हम एनाटॉमी को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा. फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी. हमें पहले जो है ह्यूमन बॉडी के किसी एक स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना पड़ेगा. जैसे हम समझने के लिए एक स्ट्रक्चर लेते हैं स्टमक का. ओके,
तो स्टडी ऑफ दिस पार्ट, ओके, स्टमक की स्टडी अगर हम करते हैं तो उसे हम कहेंगे एनाटॉमी। ठीक है, अगर हम स्टडी करते हैं हार्ट की, ओके, हार्ट इज़ द पार्ट ऑफ बॉडी, हार्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी सिस्टम। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे एनाटॉमी। नेक्स्ट, द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज ऑल्सो obtained from the Greek word the physis, जिसका मतलब होता है नेचर और ओरिजिन, लॉजी और लोगस which means study of. So the definition will be, it is the scientific study of functions and mechanism in a living system. Or you can also define physiology as is the study of how the body system work and the way in which their integrated activities maintains life and health of individuals. ठीक है, हमने एनाटॉमी में एग्जांपल लिया था स्टमक का। ठीक है, तो स्टडी ऑफ पार्ट ऑफ स्टमक इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। ओके, और स्टमक कैसे फंक्शन करता है, हाउ इट विल बी इंटीग्रेटेड विद द डिफरेंट बॉडी सिस्टम, बॉडी सिस्टम के साथ वो कैसे वर्क करता है। ओके, अगर हम बेसिक फंक्शंस की बात करते हैं स्टमक की, तो स्टमक का बेसिक फंक्शन होता है एसिड सिक्रीशन, HCl सिक्रीशन। तो एसिड जो है स्टमक के कौन से पार्ट से सिक्रेट होता है। ठीक है, उस स्टमक कौन कौन से मसल्स से मिलकर बना होता है। स्टमक बेसिकली दो टाइप के मसल्स से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यूज़, जिसे हम ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं, और सेकंड वन इज़ मस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़ का काम क्या होता है, सिक्रीशन का। ओके, जबकि मस्कुलर टिश्यूज़ का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का। ठीक है, सो स्टडी ऑफ फंक्शंस, हाउ इट वर्क is nothing but the physiology. Now we are moving towards the next subtopic. अगर हम इस वीडियो में बात की जाए तो हम इस वीडियो को दो पार्ट में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट we will study the definition of anatomy and physiology, and in the second part we will going to study the scopes of anatomy, or you can से द सब डिसिप्लिन्स ऑफ एनाटॉमी। ओके, ये जो है सब पार्ट्स है। ओके, द एम्ब्रियोलॉजी, द डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, दीज आर द सब पार्ट्स। ओके ओके, जिसकी हम स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्कोप ऑफ एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी द सब डिसिप्लिन्स और स्कोप ऑफ एनाटॉमी। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। एम्ब्रियोलॉजी इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है अनबॉर्न, लॉजी मीन्स स्टडी। सो एम्ब्रियोलॉजी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी प्री नेटल डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स, और उसको हम क्या कहेंगे, सेक्स सेल्स। मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवम। ओके, एंड फर्टिलाइजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज। ओके, आफ्टर यूनाइट ऑफ दिस सेक्स सेल द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। ओके, उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का क्या डेवलपमेंट जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, एडिशनली एम्ब्रियोलॉजी के साथ हम और क्या स्टडी कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द टेराटोलॉजी, हम टेराटोलॉजी की स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, टेराटोलॉजी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स। ओके, और कॉन्जेनाइटल एनोमली। ओके, अगर एम्ब्रियो में कुछ डिसफंक्शनिंग होती है, उसके अंदर कुछ अगर डिसऑर्डर्स आते हैं, तो उसके लिए जो है एक साइंस की जो है अलग अलग ब्रांच है, जिसको हम कहते हैं टेराटोलॉजी। ओके, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम उसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट सब डिसिप्लिन है द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है,
It is the study of process by which animals and plants grows and develop. ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें जो है स्टडी करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स की और उनके डेवलपमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं. The developmental biology also encompasses the biology of regeneration, asexual reproduction, metamorphosis, and the growth and differentiation of stem cells in the adult organism. Okay. Next, the cell biology. Cell biology, it is the study of cell structure and functions, and it revolves around the concept that cell is the structural and functional unit of life or fundamental unit of life. In some organism only one cell is there, while in complex organism there are various other types of cells are also present. ठीक है. बेसिकली अगर सेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बॉडी में तो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ. हम लाइफ का कॉन्सेप्ट उससे समझ ही नहीं सकते जब तक उस पर्टिकुलर थिंग में उसका पर्टिकुलर चीज़ के अंदर एक सेल ना हो. क्यों? क्योंकि सेल क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी. अगर सेल है तभी जो है लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है. ओके. नेक्स्ट, द हिस्टोलॉजी. It is the also one of the important branch of biology or anatomy. Okay. It is also obtained from the Greek word hist, जिसका मतलब होता है टिश्यू. लॉजी मीन्स स्टडी. हिस्टोलॉजी को और हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और माइक्रो एनाटॉमी, जो कि ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल टिश्यूज़. ओके. ऐसे स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं जिसको हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी. नेक्स्ट, द ग्रॉस एनाटॉमी. इट इज़ द स्टडी ऑफ एनाटॉमी एट विजिबल और मैक्रोस्कोपिक लेवल. ओके. ये एनाटॉमी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स की विच इज़ विजिबल टू आवर नेकेड आइज, जिसे हम इजीली सीन कर सकते हैं. ओके. सच एज आवर स्किन. ओके. आवर हेयर्स, आवर नेल्स. ठीक है. आवर फोर लिम्स. ठीक है. उसे हम कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी. नेक्स्ट आता है सिस्टेमिक एनाटॉमी. सिस्टेमिक एनाटॉमी क्या है? इज़ द स्टडी ऑफ सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके. ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट अदर सिस्टम्स होते हैं, सच एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. ओके. नेक्स्ट, द रीजनल एनाटॉमी. रीजनल एनाटॉमी क्या है? इज़ द स्टडी ऑफ रीजन्स ऑफ द बॉडी, जिसमें हम बॉडी की रीजन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं. नेक्स्ट, द सरफेस एनाटॉमी, जिसे हम सुपरफिशियल एनाटॉमी भी कहते हैं और विजुअल एनाटॉमी भी हम कह सकते हैं. इसमें क्या होता है? इसमें जो है एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स के हम स्टडी करते हैं. स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल्स. ठीक है. नेक्स्ट आता है इमेजिंग एनाटॉमी, also called as radiographic anatomy. Okay. इसमें क्या होता है? We are going to study the structure of body with the help of X-rays. Okay. हम बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं with the help of X-rays. Okay. जनरली अगर बोन डिफॉर्मिटीज़ होती है, किसी को फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस ओके द डॉक्टर will examine by means of X-ray. Next, the pathological anatomy. पैथोस का मतलब होता है डिसीज़
or suffering. Logy means study. Okay, so it is the medical specialty that concerned with the diagnosis of disease based on the microscopic, biochemical, immunological and molecular examination of organs and tissue. Okay, ये पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, ये जो ब्रांच है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है इन टर्म्स ऑफ फार्मेसी एंड इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन. ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की. ओके, इसके अंदर हिस्टोलॉजी भी आ जाता है, ग्रॉस एनाटॉमी भी आ जाता है. ओके, और द बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स. ओके, और इम्यूनोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर एग्जामिनेशंस ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़. ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्कोप्स ऑफ फिजियोलॉजी और सब डिसिप्लिन्स ऑफ फिजियोलॉजी. ओके, इसकी अगर हम सब डिसिप्लिन्स की बात करेंगे तो इसमें आता है न्यूरोफिजियोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, immunology and various other physiologies related to the different systems. Okay, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे सब डिसिप्लिन्स ऑफ फिजियोलॉजी की. फर्स्ट आता है न्यूरोफिजियोलॉजी. न्यूरो का मतलब होता है नर्व सेल, फिजियो मीन्स नेचर, लॉजी मीन्स स्टडी. हेंस you can define neurophysiology as the branch of physiology and neuroscience. Okay, neuroscience क्या है? ये मेडिसिन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है, न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजी, which is concerned with the study of functioning of nervous system. Okay, जिसमें हम स्टडी करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में. नर्वस सिस्टम क्या है? बेसिकली इट इज़ composed of two things, the brain and the spinal cord. Okay, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम की? इट इज़ द न्यूरॉन और नर्व सेल्स. ठीक है, नेक्स्ट द इंडोक्राइनोलॉजी. ओके, इंडोक्राइनोलॉजी इज आल्सो obtained from the Greek word indon means within, cranium means to secrete. Okay, logy means study. Hence it is the branch of biology and medicines dealing with the endocrine system. Okay, ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है और मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है इंडोक्राइन सिस्टम से एंड इट्स डिसीजेस एंड स्पेसिफिक सिक्रेशंस. ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स. हार्मोन क्या है? इट इज़ अ केमिकल मैसेंजर. ओके, आगे के आने वाली वीडियोज़ में हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, इंडोक्राइनोलॉजी और हार्मोन्स के बारे में. ठीक है, द कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. ओके, स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ cardiovascular. Okay, how the heart will function. Okay, specifically the blood vessels and heart. Okay, cardiovascular physiology हम स्टडी करेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और हार्ट के बारे में. ओके, इनकी वर्किंग कैसे होती है, इनके ये फंक्शन कैसे करते हैं. ओके, ब्लड वेसल्स में आ जाता है आपकी वेंस और आर्टरीज. ओके, और कैपिलरीज. नेक्स्ट द इम्यूनोलॉजी. इम्यूनिस मीन्स सेफ, लॉजी मीन्स स्टडी. हेंस यू कैन डिफाइन इम्यूनोलॉजी एज इज द स्टडी हाउ द बॉडी डिफेंड्स इटसेल्फ अगेंस्ट डिसीज और डिसीज कॉजिंग एजेंट्स से कैसे ये डिफेंड करती है. Okay, immunity, it is related to the immunity, body's self defense.
नेक्स्ट द रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ द एयर पैसेज एंड फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। हमारे लंग्स जो है कैसे फंक्शन करते हैं, रेस्पिरेशन के बारे में। ओके। नेक्स्ट द रीनल फिजियोलॉजी, रेन मीन्स किडनी। ये फिजियोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किडनी के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, इज द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। द एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या है? इज द स्टडी ऑफ चेंज इन ऑल ऑर्गन फंक्शंस एज अ रिजल्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, इसमें जो है स्टडी करते हैं मस्कुलर एक्टिविटीज़ की। ओके, जो जिमनास्ट होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, और इन जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं। ओके, डेफिनेटली मस्कुलर एक्टिविटीज़ तो कंटिन्यूसली स्टार्ट होती है, शुरू रहती है। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ लोकोमोशन। ओके, तो उसमें क्या स्टडी करते हैं हम? स्टडी ऑफ चेंज इन ऑल ऑर्गन फंक्शंस, स्टडी ऑफ चेंज इन ऑल ऑर्गन फंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी। ये जो फिजियोलॉजी की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ओके, पैथोज मीन्स डिसीज और सफरिंग, फिजिक्स नेचर और ओरिजिन, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। इट इज़ द study of change of normal mechanical, physical and biochemical functions either caused by disease or resulting from abnormal syndrome. पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ चेंज ऑफ नॉर्मल मैकेनिकल, जिसमें जो है चेंजेस होते हैं मैकेनिकल, फिजिकल और बायोकेमिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ओके, बॉडी में या कुछ मैकेनिकल चेंज आता है, फिजिकल चेंज आता है, या तो फिर इन टर्म्स ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं। ओके, विच कॉज्ड बाय डिसीज़, डिसीज़ की वजह से, डिसीज़ के कारणों की वजह से अगर कुछ चेंजेस आते हैं। ओके, और रिजल्टिंग फ्रॉम एबनॉर्मल सिंड्रोम। ओके, या कुछ एबनॉर्मल सिंड्रोम्स बॉडी में ऑकर हो जाते हैं, तो हम उसकी स्टडी किस में करते हैं? पैथोफिजियोलॉजी में हम उसकी उन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, नॉर्मल मैकेनिकल, फिजिकल, बायोकेमिकल फंक्शंस की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन, काइंडली कमेंट ऑन द गिवन ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।